Good evening, everyone. Uh, so let us continue today's class. Uh, so what you have to do is you have to solve this problem. So this is a problem from, is it visible? Yes, sir. Okay. So this is problem from Fundamentals of Electric Drives by J.V. Gupta. So have लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब लोगों ने सॉल्व किया क्या? आई नो दैट वन पर्सन हैज सॉल्व्ड. नहीं किया है तो यहाँ पे सॉल्व करो. And I am particularly interested to that you should solve this fourth part, because solve this fourth part. So the question is a 230 volt 960 rpm 200 ampere separately excited DC motor has an armature resistance of 0.02 ohm. The motor is fed from chopper which provides both motoring and braking operation. The source has voltage of 230 volt. So assuming continuous conduction. क्वेश्चन में itself दे दिया गया है continuous conduction. So first part you have to calculate the duty ratio of the chopper for motoring operation at rated torque and 350 rpm. Second part is for braking operation at rated torque and 350 rpm. Third part is if the maximum duty ratio of chopper is limited to 0.95 and maximum permissible motor current is twice the rated, calculate the maximum permissible motor speed obtainable without field weakening and power fed to the source. So you have to calculate two things. First, maximum permissible motor speed, and second is power fed to the source. Last part is if the motor field is also controlled. In third, calculate the field current as fraction of its rated value for a speed of 1200 rpm. Okay, so quickly calculate. So the information given in question is that it is a 230 volt 960 rpm 200 ampere separately excited DC motor, and value of Ra is given as 0.02 ohm, and additionally given as what is given is that the supply voltage is 230 volt. High voltage is given as 230 volt. तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब 230 वोल्ट दे ही दिया तो सप्लाई वोल्टेज अगेन 230 वोल्ट देने का क्या मतलब? ये दोनों वोल्टेज में क्या अंतर है? एनीवन? So let's make this a circuit diagram. And the motor is controlled by a type A chopper. So the terminal voltage of this DC machine or is this DC motor is 230 volt, and so VA is the terminal voltage.
So what is given is by this much is that VA is 230 volt, that its rated value. Rated value of terminal voltage of this DC motor is 230 volt, and here the chopper is connected with the supply. So this supply voltage is this 230 volt. So Vs is 230 volt. Now we know the relation between this Va and Vs for type A chopper. It is Va equal to delta Vs. Okay, so in rated condition, duty ratio must be 1, so that rated voltage is applied to this DC motor. Okay, so these are the information which is given. Additionally, what is given is that the machine is operating in continuous conduction mode. So continuous conduction mode. We know that only in continuous conduction mode we can use this relation. Okay, if it is a discontinuous conduction mode, then Va will not be equal to delta Vs. Okay, so there will be some other term, that is E into 1 minus x by t. So let us solve the first part. फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर फॉर मोटरिंग ऑपरेशन एट रेटेड टॉर्क एंड 350 आरपीएम. तो फर्स्ट पार्ट में करना है. इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईबी का वैल्यू निकाल लेंगे जब ये हमारा मोटर रेटेड कंडीशन में रन कर रहा है तो. ठीक है, तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस आई ए आर ए. ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ व्हेन मोटर इज ऑपरेटिंग एट रेटेड कंडीशन. तो रेटेड कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, दिस 230 वोल्ट माइनस रेटेड करंट कितना है, दिस 200 एम्पियर इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस is 0.02 ओम. तो दिस विल कम अराउंड, कितना आ रहा है, 226 volt, sir. so it is 226 volt. Now at rated condition speed is 960 rpm. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर फॉर मोटरिंग ऑपरेशन एट रेटेड टॉर्क एंड 350 rpm. Find it. So at 350 rpm, what we will do is we will calculate the value of back EMF. Let the back EMF is E2. So what will be the value of E2? E2 will be, so we have to calculate the DT ratio. I will directly write the equation, minus IA RA, where, or we can write it as VA minus IA RA, where VA equal to delta V. This V is supply voltage. Okay. Now here what is known, this is not known, this is not known, and these values are known. Okay, so we will calculate value of E2. What we can do is E is directly proportional to N. Since it is a separately excited DC motor and flux is constant. Nothing has been said about flux, so we will take flux as constant. So we can write it as E is directly proportional to N. So we can write as, suppose this is 1 E1 by E2 equal to N1 by N2. So
E2 is equal to 2 by N1 into E1. Now, what is N2? N2 is our 350 RPM. 350 divided by N1. N1 is this value 960 RPM. 960 into E1. E1 is 226 volt. So this will come around. कितना आ रहा है? 82.39. 82.4 volt. So we get the value of E2. Just put the value of E2 in this equation. What will happen is, so I will directly write delta equal to E2 plus IARA divided by V. So E2 is 82.4 plus what is the value of IA? So क्वेश्चन में कहा गया है कि दैट द मशीन इज ऑपरेटिंग एट रेटेड टॉर्क. ठीक है, मशीन जो है वो रेटेड टॉर्क पे ऑपरेट कर रहा है एंड वी नो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टॉर्क इज इक्वल टू K into phi into IA. So if the value flux is at rated value, क्योंकि हम लोग फ्लक्स सर्किट में कुछ कर नहीं रहे हैं, फ्लक्स हमारा रेटेड वैल्यू पे है, टॉर्क रेटेड है, that means that current should also be a rated value. So here we will take value of current as rated current. So rated current is 200 ampere. So it is 200 into 0.02 divided by V. V का वैल्यू कितना है? 230 वोल्ट. कितना आ रहा है? 0.375. 82.4 plus 4 divided by 230. 0.3757. So it is 0.3757. So this will be the value of duty ratio. Now, second part क्या कह रहा है? Second part क्या कह रहा है? Calculate the duty ratio of chopper for braking operation at rated torque and 350 RPM. ठीक है? So second is that the motor is operating in braking mode. तो ब्रेकिंग ऑपरेशन में क्या होता है? जो हमारा मोटर होता है वो जनरेटर के जैसा बिहेव करता है. तो जनरेटर वाला इक्वेशन इसमें हम लोग लिखेंगे. तो क्या हो जाएगा? VA इक्वल टू E माइनस IA इंटू RA. ठीक है, VA इक्वल टू E माइनस IA RA हो जाएगा. तो दैट मीन्स E इक्वल टू, और VA को हम लिख सकते हैं डेल्टा V प्लस, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V इक्वल टू E माइनस IA RA. सो वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू E माइनस IA RA बाय V. तो E का वैल्यू क्या है? सिंस स्पीड हमारा सेम है 350 RPM, सो E का वैल्यू सेम रह जाएगा. सो इट इज 82.4 वोल्ट. 82.4. Torque is rated torque, so IA will be same 200 into 0.02 divided by 230. It will come around, कितना आ रहा है? 0.340 sir. So it will come around 0.34. So this is second part. ये दो पार्ट तो इजी था. थर्ड पार्ट में आते हैं. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? क्या कह रहा है कि मैक्सिमम ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर इज लिमिटेड टू 0.95, that is delta equal to 0.95, that is maximum value. ठीक है,
and maximum permissible motor current is twice the rated current. ठीक है, so हमें मोटर का स्पीड निकालना है एंड पावर फेड टू द सोर्स. मैक्सिमम परमिसेबल मोटर स्पीड. सी यहाँ पे क्या है कि सिंस हमें पावर फेड टू द सोर्स निकालना है, तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो मशीन है ये ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि मोटर जो है वह मोटरिंग मोड में काम कर रहा है या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, बट यहाँ पे एक दिया हुआ है पावर फेड टू द सोर्स. तो पावर तो सोर्स को फेड करता है ओनली इन केस ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग. तो what is given is delta max equal to 0.95 and IA equal to 2 times the rated value. So it is 400 ampere. Now हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड. So we have to calculate the speed. स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले EMF बैक EMF कैलकुलेट कर देंगे. तो बैक EMF क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, ये भी तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ही इक्वेशन है. बैक EMF हो जाएगा डेल्टा V प्लस IARA. तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डेल्टा मैक्स. So it is 0.95 into V is 230 plus IA. IA का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, that is 400 into 0.02. So इसका कितना वैल्यू होगा, 226.5. it is 226.5 वोल्ट. तो अगेन हम लोग का फ्लक्स कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लक्स वीकनिंग हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं अगेन सपोज दिस इज E3. तो E3 बाय E1 इक्वल टू N3 बाय N1. यहाँ से N3 दैट इज स्पीड व्हेन EMF इज दिस मच, क्या हो जाएगा N1 इंटू E3 बाय E1. तो N1 कितना है हमारा, N1 हमारा है रेटेड वैल्यू 960 RPM. So it is 960 into E3 is 226.5 divided by E1. E1 is what, 226. So this is 226. कितना आ रहा है, Sir, 962.12. 962.12. So this will be the maximum speed of motor when flux is at rated value. Now second हमें क्या निकालना है, पावर सप्लाई टू द सोर्स. कैसे निकालेंगे, बताओ पावर सप्लाई टू द सोर्स कैसे निकालेंगे. Sir, VA का. So it will be VA into IA. So VA is 95 into 230 into IA is 400. So this will come 95. 87.4 kilowatts. Sir. So it is coming 87.4 kilowatt. So ये तीन पार्ट तो बहुत इजी था, हमें इंटरेस्ट है फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने में. सी फोर्थ पार्ट जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस समय मैं बताया था कि फ्लक्स वीकनिंग, यदि हमें फ्लक्स वीकनिंग ऑपरेशन करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड सर्किट में एक
चॉपर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो फ्लक्स वीकनिंग ऑपरेशन के लिए क्या होगा कि नॉर्मली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा फील्ड सर्किट है, ठीक है, वो हमारा फील्ड सर्किट क्या है, इज सप्लाइड फ्रॉम दैट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। ठीक है, इज सप्लाइड फ्रॉम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। सो इसको Vs से सप्लाई दे दिए, इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स वीकनिंग ऑपरेशन में क्या होगा, इस साइड में भी हम लोग एक चॉपर सर्किट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक कि एक हमने चॉपर सर्किट कनेक्ट किया है। ठीक है ना, इस सर्किट में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Vs और फील्ड टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज Vf। तो Vs और Vf के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट Vf इक्वल टू डेल्टा टाइम्स ऑफ Vs। ठीक है, तो Vf इक्वल टू एक बार आ गया हमारा डेल्टा टाइम्स ऑफ Vs। तो सपोज दिस करंट इज If, तो If क्या हो जाएगा हमारा, If हो जाएगा हमारा Vf बाय Rf, वेयर Rf इज रेसिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड सर्किट। सो वेयर Vs इज, this is Vs, so delta times of Vs by Rf is If। now हमारा फ्लक्स क्या होता है, mmf by reluctance। so suppose reluctance is this R and mmf क्या होता है, Ni। so suppose number of turns in this field circuit is Nf, so this is Nf into If। so If का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Nf delta Vs divided by reluctance into this Rf, resistance of this field winding। तो फॉर ए गिवन फील्ड सर्किट क्या होगा, ये टर्म हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट होगा, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, रिलक्टेंस ये भी कांस्टेंट होगा और रेसिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड वाइंडिंग ये भी कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, यदि हमको फ्लक्स को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा के वैल्यू को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो फ्लक्स वीकनिंग ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा कि यदि हमें फ्लक्स के वैल्यू को रिड्यूस करना है तो इस केस में क्या है कि हमें इस साइड में भी एक चॉपर लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कहा गया है कि फ्लक्स वीकनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो फ्लक्स जो अभी तक हम लोग कांस्टेंट ले रहे थे वो फ्लक्स अभी कांस्टेंट नहीं होगा। सो इन दिस केस फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट। सो इन दिस केस फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, फ्लक्स यदि हमारा कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, दैट पहले हम लोग लिख दे रहे थे ईएमएफ इक्वल टू होता है के फाई इंटू एन। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख दे रहे थे ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अभी क्या है, अभी ये नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इंटू एन। ठीक है, क्योंकि के तो हमारा कांस्टेंट है। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द मोटर इज आल्सो कंट्रोल्ड, इफ द मोटर फील्ड इज आल्सो कंट्रोल्ड इन 3, ठीक है, कैलकुलेट द फील्ड करंट एज फ्रैक्शन ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू फॉर ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। सो इस केस में क्या दिया हुआ है कि स्पीड दिया हुआ है 1200 आरपीएम पे, क्या कहते हैं, फील्ड करंट अपने रेटेड वैल्यू का कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि लेट एट 1200 आरपीएम जो हमारा फ्लक्स है, सपोज दिस इज फ्लक्स फाई 2 इज रिलेटेड विथ रेटेड फ्लक्स बाय दिस रिलेशन, फ्लक्स फाई 2 इक्वल टू x टाइम्स ऑफ फ्लक्स फाई 1। ठीक है,
where phi 1 is rated flux, rated फ्लक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे मैग्नेटिक लीनियर सर्किट, मैग्नेटिक लीनियर सर्किट, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट जो है वो सैचुरेशन स्टेट में नहीं है। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ लीनियर सर्किट हम लोग कर सकते हैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू दिस आई एफ। ठीक है, तो हमारा क्या है, सपोज दिस ईएमएफ एट दिस कंडीशन इज E4, so E4 divided by E1, that is rated EMF, rated back EMF, so we can write it as E4 is proportional to this phi 2 into N4, okay, divided by phi 1 into N1, where phi 1 is the rated flux, N1 is rated speed, N4 is speed जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पार्ट में 1200 rpm, and phi 2 is x times of phi 1, E4 is back EMF when speed is 1200 rpm, and E1 is rated back EMF when machine is running at rated speed. So यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, E4 का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे E4 का वैल्यू विल बी सेम एज दिस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा जो मशीन है वो पार्ट 3 वाला ही मशीन है। ठीक है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स है एंड IA इक्वल टू 2 टाइम्स IA रेटेड है। सो E3 ये दिया हुआ है 226.5, so it is 226.5, E1 is 226 equal to phi 2 is x times of phi 1 into this is 1200 rpm divided by phi 1 into 960 rpm. So calculate the value of x, it will come around कितना आ रहा है 0.8017. 8018, or we can write it as in terms of percentage 80.18%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब फ्लक्स वीकनिंग का केस दिया रहेगा तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर ये पूछे सर डिफॉल्ट में सर हम लोग लीनियर कोर ही अज्यूम करेंगे क्या? एक्चुअली क्या हुआ है, नहीं देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि मैग्नेटिक सेचुरेशन क्या जो मैग्नेटिक सर्किट है वो सेचुरेटेड है या नहीं है। यदि नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि इट इज अ लीनियर सर्किट। ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब डिफॉल्ट में ही होता है ना सर, मतलब मान के चलेंगे खुद से ही कि लीनियर है। यदि उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, तो हम लोग लीनियर सर्किट एज्यूम करेंगे। यदि तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ रहेगा तो उस केस में लीनियर सर्किट नहीं एज्यूम करेंगे, जिस हिसाब से मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है रिलेटेड विथ पावर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग कैसे दिस पावर एंड इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे व्हेन डीसी मोटर इज सप्लाइड बाय एन टाइप ए चॉपर। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज कि एक हमारा डीसी मोटर है, इट इज सप्लाइड बाय टाइप ए चॉपर। ठीक है,
ये मान लो है स्विच S, दिस इज डायोड D, दिस इज VS, दिस इज IA, दिस इज VA, दिस इज RA, LA एंड ED। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पावर कैलकुलेट करना है कि कौन से पार्ट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेसिस्टर में कितना पावर, एवरेज पावर कंज्यूम हो रहा है। तो रेसिस्टर के अक्रॉस पावर कितना हो जाता है बताओ। इफ द करंट इज IA, दिस इज R, तो रेसिस्टर के अक्रॉस पावर क्या होता है, एवरेज पावर। तो रेसिस्टर के अक्रॉस एवरेज पावर हो जाएगा, लेट मी राइट द इक्वेशन, 1/T integration over a time period, this is IA square R dt। यही हो जाएगा एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, रेसिस्टर के अक्रॉस दिस इंस्टेंटेनियस करंट IA स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। इसी का जब हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड T, हम लोग इसका एवरेज वैल्यू लेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सो वी R तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, तो इट इज 1/T डिविजन T ये स्क्वायर dt। ना ये होगा, तो इतना टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज IRMS स्क्वायर। तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेशन होता है वो होता है IARMS स्क्वायर इंटू R। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन क्या होता है जनरली कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, एवरेज पावर। ठीक है, तो हमारा इंस्टिंक्ट क्या कहेगा कि एवरेज पावर दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे IA एवरेज स्क्वायर इंटू R, लेकिन ये लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत। रेसिस्टर के अक्रॉस पावर क्या होता है, IARMS स्क्वायर इंटू R। ठीक है, उसी तरीके से एक EMF सोर्स के अक्रॉस, ये EMF सोर्स कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, सपोज दिस करंट इज IA, ये EMF है E, ये एवरेज पावर इसके अक्रॉस कितना एब्जॉर्ब होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P एवरेज विल बी इक्वल टू 1/T, इस केस में P इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, E इंटू IA। सो वी कैन राइट इट एज T E इंटू IA इंटू DT। अगेन E जो है हमारा क्या है, बैक EMF है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ जाएंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज E इंटू 1/T IA DT। ठीक है, तो इतना चीज को हम लोग लिख सकते हैं I एवरेज। सो दिस इज E इंटू I एवरेज। सो एक EMF सोर्स के सोर्स कितना पावर एब्जॉर्ब करता है या कितना पावर डिलीवर करता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, एवरेज पावर के लिए वी हैव टू कैलकुलेट वाया दिस फॉर्मूला E इंटू आई एवरेज। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि हमारा लोड इस तरीके से रहेगा, दिस इज करंट IA, दिस इज रेसिस्टर R, दिस इज EMF E। तो इस केस में एवरेज पावर क्या हो जाएगा, दिस विल बी IARMS स्क्वायर इंटू R प्लस E इंटू IA एवरेज। ठीक है, तो ये सारा चीज इज वैलिड एवरीवेयर। ठीक है,
इसी चीज को कई जगह पेपर हो गए कि यदि वोल्टेज ST फ्लोट रहता है तो उस केस में पावर होता है दिस मच, करंट ST फ्लोट रहता है तो उस केस में क्या पावर होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। नाउ अभी क्या है कि हमारा जो स्विच है, ठीक है, ओके, हमारा स्विच अभी क्या है, आइडियल स्विच है। अभी हमने आइडियल स्विच लिया है, मतलब कि इसमें कोई पावर डेसिपेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स टेक, पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि आउटपुट पावर क्या हो जाएगा। तो इस केस में यदि मशीन हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर विल बी दिस इज दैट, इसके ये जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है यही पावर फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पी आउट विल बी ई इंटू आई एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान में देना है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, DC मशीन पर हो गए तो इसको हम लोग एयर गैप पावर भी कहते हैं। सो दिस पावर इंक्लूड्स दैट कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, कांस्टेंट लॉस प्लस जो हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है, इन सारे को, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम आउटपुट पावर निकालेंगे तो हमको इस पावर में से ये दोनों लॉस को घटाना पड़ेगा। और अदर वे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि सपोज कर लो कि मोटर दिया हुआ है कि 750 किलोवाट का मोटर है, तो दिस इज द आउटपुट पावर एंड इफ इफिशियंसी इज गिवन एज, सपोज करो 90% गिवन है इफिशियंसी, तो हमारा जो है ये वाला जो पावर है, सो इस केस में हम लोग E इंटू आई एवरेज का वैल्यू डायरेक्ट इस केस में 750 पुट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर है हमारा मशीन का कितना पावर आउटपुट कर रहा है। ठीक है, और ये पावर क्या है हमारा, एयर गैप पावर। तो बेसिकली क्या होगा, इतना डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी करेंगे तो जो पावर आएगा दैट विल बी आवर एयर गैप पावर। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है ना। पी आउटपुट तो हाँ, सर यहाँ पे आउटपुट मतलब ये क्या क्रॉस जब ले रहे हैं तो वहाँ पे आरए वाला पावर भी तो इंक्लूड होना चाहिए, आरए में सी जो वो होगा पी आउट। आरए क्या है हमारा, मशीन का जो आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। आर्मेचर वाइंडिंग में के रेसिस्टेंस में क्या होता है, पावर डेसिपेट हो रहा है। ठीक है, वो हमारा लॉस है, उसको कहते हैं ना, मशीन में होता है कॉपर लॉस, तो ये हमारा कॉपर लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर के अक्रॉस तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा पी आउटपुट इतना आ रहा है, बट इस केस में हमें ध्यान रखना है कि इसमें कांस्टेंट लॉसेस और जो हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है वो इसमें इंक्लूडेड है ना। लॉस कितना है, पावर लॉस कितना हो रहा है हमारा, पावर लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर के अक्रॉस, तो पी लॉस हो रहा है रेसिस्टर के अक्रॉस, दैट इज आई ए आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो आई ए आर एम एस इंटू स्क्वायर इंटू आर, तो पी इनपुट क्या हो जाएगा, पी इनपुट लिख सकते हैं दिस प्लस दिस। ठीक है, तो पी इनपुट विल बी ई इंटू आई एवरेज प्लस आई ए आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये हो